Hello students, today in this lecture I will discuss with you the concept of center of mass of the two particle system. Center of mass of two particle system. Center of mass of two particle system. ध्यान से देखिए. Let us suppose students, let us the coordinate frame, say the xy frame, and in the xy frame we are considering these two particles whose masses they are m1 and m2. We are considering the two particle system, their masses are m1 and m2. Let us suppose this vector r1 is the position vector and r2 is the position vector. R1 is the position vector of the particle whose mass is m1 and r2 is the position vector of the particle whose mass is m2. Got it, sense? Now let us suppose this is vector f1. Vector f1 be the force acting on the particle whose mass is m1 and vector f2 be the force acting on the particle whose mass is m2. Let us suppose that these particles they have the velocity is say vector v1 and vector v2. Got it, sense? तो पहले आप ये फिगर कॉपी करें. फिगर कॉपी करने के बाद कंसीडरेशंस लिखनी है. आप फिगर कॉपी कर लेंगे, मुझे मालूम है. कंसीडरेशंस लिखवा रहा हूं, आप नोट करें. Consider the two particle system having the masses m1 and m2 in the coordinate frame. Full stop. Next line में लिखें. Let vector r1 be the position vector of the particle having the mass m1 and vector r2 be the position vector of the particle having the mass m2. Full stop. Next line में लिखिए. Let vector f1 be the force acting on the particle having the mass m1 and vector f2 be the force acting on the particle having the mass m2. Full stop. Let vector v1 and vector v2 be the velocities of the particles respectively. Now sirs, अब मेरी बात ध्यान से सुने. बेटा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा हुआ है. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल. तो बेटा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम फर्स्ट पार्टिकल के लिए यूज करेंगे और फिर सेकंड पार्टिकल के लिए यूज करेंगे. नाउ यूजिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मैंने यहां पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. This vector f1 is written as the rate of change of linear momentum of the first particle. Okay, vector f1 is written as dp1 by dt. Now this vector p1 is the linear momentum of the first particle, so it is written as m1 v1 vector. Got it, sense? Now this vector v1, it is written as the rate of change of position. Vector v1 is written as rate of change of position of the first particle. So since we can say that this vector p1 is written as say m1 multiplied with d by dt of r1 vector. Okay, now we are writing out the value of p1 over here. So we can say that this vector f1 is written as say m1 multiplied with देखिए ऐसे करते हैं d by dt of m1 d by dt of vector r1. ओके, अब ध्यान से देखिए, मास m1 तो कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा टाइम के साथ. सो दिस कैन बी रिटन एज दिस f1 इज रिटन एज m1 d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद r1 वेक्टर. d by dt मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओके, इसी तरीके से f2 का रिलेशन ऑब्टेन करेंगे. F2 is the force acting on the second particle. So this force F2, it can be written as the rate of change of linear momentum of the second particle, dp2 divided by dt. And this p2 vector is written as mass m2 v2 vector
vector v2 is written as the rate of change of position of the second particle. So since this vector p2 is written as m2 d by dt of vector r2. Okay, now we have to write out the value of p2 over there. So we can say that this force F2 vector is written as d by dt of m2 d by dt of vector r2. Okay, now since देखिए मास m2 टाइम के साथ तो चेंज नहीं होगा, so this force F2 vector is written as m2 multiplied with d square by dt square multiplied with r2 vector. Okay sirs, तो बेटा F1 वेक्टर और F2 वेक्टर दोनों की एक्सप्रेशंस हमने ऑब्टेन कर ली है. क्लियर? यहां तक ये कैलकुलेशन पहले आप कॉपी करें. यस स्टूडेंट्स, डन. ये कैलकुलेशन कॉपी हो गई. अब बात करेंगे स्टूडेंट्स टोटल एक्सटर्नल फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम. देखिए F1 एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट पार्टिकल, F2 एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकंड पार्टिकल. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टोटल एक्सटर्नल फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम. अब सिस्टम की बात करने वाले हैं. Now let us suppose vector F be the net force acting on the system. So since this vector F is written as say vector F1 plus vector F2. Okay, तो since vector sum करेंगे आप, vector F1 was m1 d square by dt square multiplied with r1 vector, और F2 vector it is m2 d square by dt square multiplied with r2 vector. Got it students? समझ आ गई ये बात? अब ध्यान से देखिए, दोनों में से this vector F can be written as m1. चलिए पहले d square by dt square को कॉमन लेते हैं. d square by dt square को कॉमन ले लेते हैं. We can write this as m1 r1 vector plus m2 r2 vector. ब्रैकेट लगा लेते हैं. समझ आ गई बात? अब हम क्या कर रहे हैं? हम एक काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर हो गया. अब हम क्या कर रहे हैं? टोटल मास ऑफ द सिस्टम से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे. नाउ दिस वेक्टर f can be written as say m1 plus m2. It is the total mass of the system. Multiply divide कर रहे हैं. It is d square by dt square multiplied with m1 r1 vector plus m2 r2 vector divided by m1 plus m2. So यहां तक बात समझ आ गई. Now we are going to call this as the equation number first. तो स्टूडेंट्स ये वाली कैलकुलेशन आप पहले कॉपी कर लें. ये वाली कैलकुलेशन आप कॉपी करिए. यस फ्रेंड्स, ये वाली कैलकुलेशन आपने कॉपी कर ली. अब ध्यान से मेरी बात सुनिए. फ्रेंड्स हमने किया था डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. मतलब फ्रेंड्स आप एक्चुअल सिस्टम को कंसीडर करें या सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को कंसीडर करके कैलकुलेशंस करें तो फ्रेंड्स कोई चेंजेस नहीं आते. या यूं कह लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए यूज किया हुआ है. ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ऐसा करते हैं फ्रेंड्स, बेटा ये जो टू पार्टिकल सिस्टम है इसका सेंटर ऑफ मास कहीं तो होगा, कोई तो होगा, उसका कोई तो पोजीशन वेक्टर होगा. समझ आ गई बात? तो अब हम ऐसा करते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को फिट करने की कोशिश करते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास. क्लियर? ओके, अब ध्यान से देखिए. तो जो एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे लगा है हम बोलेंगे कि वही एक्सटर्नल फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगा है. ओके, नाउ यूजिंग द कॉन्सेप्ट of
center of mass. This vector F, it is the external force, okay, which was acting on the system. अब हम इसको center of mass पे लगा रहे हैं. So this vector F, it should be equals to the total mass of the system m1 plus m2 multiplied with the acceleration of center of mass. Yes or no? F equals to ma, Newton's second law of motion. Now यहां पर वेक्टर ACM को क्या लिखा है? वेक्टर ACM is the acceleration of the center of mass of the two particle system. Now since the acceleration, definition use कर रहे हैं acceleration का. The acceleration of the center of mass is written as the rate of change of velocity of center of mass. Rate of change of velocity of center of mass. And since the velocity of center of mass is written as the rate of change of position. The rate of change of position of center of mass. Clear? बात समझ आ गई? F equals to ma, center of mass का concept use किया, acceleration, rate of change of velocity, velocity, rate of change of position. तो वेक्टर RCM को हमने यहाँ पे क्या बोला? वेक्टर RCM को हमने पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम बोला है. समझ आ गई बात? तो फ्रेंड्स, होप सो ये कैलकुलेशन आपने कॉपी किया था. अब ध्यान से देखें, अब ध्यान से देखें बेटा. पहले तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का वैल्यू यहां पर प्लेस करेंगे. इसके बाद जो कैलकुलेशन है मैं इधर कर रहा हूं. सो सिंस दिस वेक्टर F is written as the total mass of the system, it was m1 plus m2 multiplied with acceleration की बात करें, it is d by dt of velocity of center of mass. This vector F is written as say m1 plus m2 multiplied with d by dt. velocity of center of mass की बात करें, it is d by dt of vector r cm. So this vector F is written as say m1 plus m2 multiplied with d square by dt square. It is vector r cm. ओके सर. तो बेटा सेंटर ऑफ मास को अगर हम यूज करते हैं तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम इस फॉर्म में लिखने वाले हैं. लेट अस कॉल दिस एज द इक्वेशन नंबर सेकंड. अब देखिए, एक्चुअल कॉन्सेप्ट में कैलकुलेशंस हो या सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज करके कैलकुलेशंस हो, रिजल्ट्स तो सेम आएंगे. तो स्टूडेंट्स देखिए, सेंटर ऑफ मास का यूज करके हमने एक्सटर्नल फोर्स का रिलेशन सेंटर ऑफ मास के पोजीशन की टर्म्स में डिफाइन किया है. और सिंस हमने पहले जो किया था, पहले हमने टू पार्टिकल सिस्टम को एक्चुअली कंसीडर किया था और जो टोटल फोर्स सिस्टम पे लग रही थी हमने उसका एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया था. तो फ्रेंड्स, ये दोनों एक्सप्रेशंस क्योंकि सेम होने चाहिए तो हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं. नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद इक्वेशन सेकंड वी गेट. अब ध्यान से देखिए, दोनों को कंपेयर करते हैं तो सिंस वी गेट दिस m1 प्लस से m2 मल्टीप्लाइड विद d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर वेक्टर r cm, इट विल बी इक्वल्स टू. तो सिंस ये इक्वेशन सेकंड का रिजल्ट है. अब बेटा इक्वेशन फर्स्ट के रिजल्ट के साथ कंपेयर कर रहे हैं. इट इज m1 प्लस से m2 मल्टीप्लाइड विद d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर, d square by dt square multiplied with m1 r1 vector plus m2 r2 vector divided by m1 plus m2. ओके, क्लियर? बात समझ आ गई? हमने दोनों को कंपेयर कर लिया. ओके, अब ऐसा करें, m1 प्लस m2 कैलकुलेशन से कैंसिल आउट हो जाएगा. d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. वी विल गेट दिस वेक्टर r cm, इट विल बी इक्वल्स टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, दैट इज m1 प्लस m2. तो फ्रेंड्स, पोजीशन वेक्टर और द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम, ध्यान से देखें,
इट इज m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन नंबर थर्ड है, ये इक्वेशन नंबर थर्ड, इट इज द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम। अब इक्वेशन नंबर थर्ड के राइट हैंड साइड से हमें देखने को मिलता है कि बेटा टू पार्टिकल सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो स्ट्रेट लाइन पर लाई करेगा जो दोनों को ज्वाइन करेगी, और उस स्ट्रेट लाइन को इंटरनली मासेस की रेशियो में डिवाइड करेगा। ध्यान से देखिए, ये इंटरनल डिवीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये इंटरनल डिवीजन दिखाई दे रहा है स्ट्रेट लाइन का इन द रेशियो ऑफ द मासेस। ओके, तो फ्रेंड्स यहां तक कॉपी करने के बाद आप नेक्स्ट लाइन में एक स्ट्रेट लाइन लिखें, मतलब एक स्टेटमेंट लिखें। फ्रॉम द इक्वेशन नंबर थर्ड वी कंक्लूड दैट द सेंटर ऑफ मास of the two particle system lies on the straight line joining both the particles of the system, and it will divide the straight line internally in the ratio of the masses of the system। बात समझ आ गई? तो फ्रेंड्स अब देखिए बेटा, मासेस m1 m2 आपको दिखाई दे रहे हैं, तो मासेस m1 m2 को किया हमने ज्वाइन। ओके, तो बेटा जो सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का वो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करेगा, और इस तरीके से लाई करेगा, इस तरीके से लाई करेगा कि जो सेंटर ऑफ मास होगा टू पार्टिकल सिस्टम का वो स्ट्रेट लाइन को डिवाइड करेगा internally in the ratio of the masses of the system. So friends, this point C is the center of mass of the two particle system. तो next line में लिख लें, the point C is the center of mass of the two particle system। बात समझ आ गई? तो आप ये कैलकुलेशन कॉपी करें, सेंटर ऑफ मास की मार्किंग कर ले फिगर में, पॉइंट C सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का। ओके, तो आगे की डिस्कशन मैं फिर कर रहा हूं। अब बेटा देखिए, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर हमने ऑब्टेन कर लिया। अब फ्रेंड्स कुछ केसेस को हमें स्टडी करना है। सबसे पहला केस, इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट नंबर फर्स्ट, मान लेते हैं फ्रेंड्स कि टू पार्टिकल सिस्टम है और जो सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन पे लाई करे। इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम lies at the origin, सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम अगर ओरिजिन पे लाई करेगा देन वी कैन से दैट दिस वेक्टर RCM it will be equals to 0. This implies that this m1 r1 vector plus m2 r2 vector divided by the total mass m1 plus m2 it will be equals to 0. So we can say that this m1 r1 vector plus m2 r2 vector it will be equals to 0. That is this m1 r1 vector it is equals to negative of m2 r2 vector. अब ध्यान से देखिए इस वाली इक्वेशन को बेटा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द पोजीशन वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द पोजीशन वेक्टर, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल होंगे क्योंकि वेक्टर है, तो डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट होंगे। सो फ्रॉम इट वी कंक्लूड दैट दिस r1 वेक्टर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ m2 डिवाइडेड बाय m1 r2 वेक्टर। बात समझ आ गई? क्लियर हो गई बात? इन मैग्नीट्यूड वी कैन से, in magnitude we can say that this r1 by r2 is equals to m2 by m1. In magnitude r1 by r2 is equals to m2 by m1. मतलब स्टूडेंट्स सेंटर ऑफ मास से पार्टिकल का जो डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ मास से पार्टिकल का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंसेस का रेशियो,
distances of the particle from the position of the center of mass, it is in the inverse ratio of the masses of the system. कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए, if suppose say this m2 is greater than m1, if suppose say this m2 is greater than m1, then since this ratio m2 divided by m1, it will be greater than 1. The ratio m2 by m1, it will be greater than 1. This implies that this r1 by r2, it will be greater than 1. This implies that this r1 is greater than r2. r1 is greater than r2. ध्यान से देखिए बेटा, m2 m1 से बड़ा है, m2 m1 से बड़ा है, तो r1 r2 से बड़ा है. मतलब लेट अस सपोज, अगर हम इसको ओरिजिन बोल दें, ठीक है, तो सिंस जो सेकेंड पार्टिकल है जिसका मास m2 है, सेकेंड पार्टिकल है जिसका मास m2 है, वो ओरिजिन के नजदीक लाई करेगा, और जो मास m1 है वो ओरिजिन से दूर लाई करेगा. मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम हमेशा हैवियर पार्टिकल के नजदीक लाई करता है. देखिए, m2 is greater than m1, m2 is greater than m1, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास था ओरिजिन पे, तो ओरिजिन हमने यहां पे मार्क कर लिया है. तो ओरिजिन से ये वाला वेक्टर हो गया वेक्टर r2, और ये वाला वेक्टर हो गया वेक्टर r1. क्लियर? अब अगर आप डिस्टेंसेस को देखें, यहां पर हमने डिस्टेंस मार्क किए हुए, r1 is greater than r2, r1 is greater than r2. तो यहां से क्या पता लगता है? यहां से पता लगता है कि जो सेंटर ऑफ मास है टू पार्टिकल सिस्टम का, इट ऑलवेज लाइज नियर द हैवियर पार्टिकल ऑफ द सिस्टम. तो मैं ये स्टेटमेंट आपको दे रहा हूं, नोट करें. From the calculation above, we conclude that the center of mass of the two particle system always lies near the heavier particle of the system. Always lies near the heavier particle of the system. बात समझ आ गई? ओके, ये कैलकुलेशन कॉपी कर लें स्टूडेंट्स. यस स्टूडेंट्स, ये कैलकुलेशन कॉपी कर लिया आपने. अब बात करेंगे स्टूडेंट्स सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास of two particle system. So friends, let us suppose say that vector VCM be the velocity of center of mass of two particle system. तो स्टूडेंट्स, हम वेलोसिटी का डेफिनेशन यूज करने वाले हैं. बाय डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास is written as the rate of change of position of the center of mass. ओके, और वेलोसिटी ऑफ ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमने ऑब्टेन कर लिया था. सो द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, it can be written as d by dt of m1 r1 vector plus m2 r2 vector divided by m1 plus m2. ओके, अब ध्यान से देखिए, d by dt से मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट को, तो d by dt से हम r1 और r2 को मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस वेक्टर VCM is written as say m1 d by dt of r1 vector plus m2 d by dt of r2 vector whole divided by m1 plus m2.
ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। देखिए डी बाई डी टी ऑफ आर वन वेक्टर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, rate of change of position of the first particle, it will be the velocity of the first particle. d by dt of r2, rate of change of position of the second particle, it will be the velocity of the second particle. Now this d by dt of r1 vector is vector v1 and this d by dt of vector r2 is vector v2. Okay, so putting these values over here, we get this VCM, the velocity of the center of mass is written as m1 v1 vector plus m2 v2 vector divided by m1 plus m2. Got it friends? अब ध्यान से देखिए, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास जब आपने निकालना है तो फ्रेंड्स लीनियर मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल प्लस लीनियर मोमेंटम ऑफ द सेकंड पार्टिकल, मतलब आपको वेक्टर कैलकुलेशन करनी है। समझ गए बात को? पार्टिकल्स अगर सेम डायरेक्शन में मूव करें, बेटा सिस्टम के दोनों पार्टिकल्स अगर सेम डायरेक्शन में मूव करें, क्लियर, तो यूज करेंगे मैग्नीट्यूड वाइज m1 v1 प्लस m2 v2, क्लियर। और अगर पार्टिकल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, ठीक है, तो देखना पड़ेगा कि लीनियर मोमेंटम किसका ज्यादा है। ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो यूज करेंगे m1 v1 माइनस m2 v2। हमने मान लिया कि m1 v1 m2 v2 से बड़ा है, ठीक है। वेक्टर कैलकुलेशन करनी, बस इस बात का ध्यान रखिए। समझ गए बात को? एक काम करें, कैलकुलेशन कॉपी कर लें। यस स्टूडेंट्स, डन। अब ध्यान से देखिए, जो आपसे बात कर रहा था, इंपॉर्टेंट, इफ पार्टिकल्स हैव velocity in same direction, ठीक है, तो स्टूडेंट्स इन मैग्नीट्यूड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का मैग्नीट्यूड, इट विल बी m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ध्यान से सुन ले, पार्टिकल्स का वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में है और आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो स्टूडेंट्स आपने ये एक्सप्रेशन यूज करना है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स वेक्टर, ये फर्स्ट वेक्टर है, इट इज द लीनियर मोमेंट ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, द लीनियर मोमेंट ऑफ द सेकंड पार्टिकल। दोनों पार्टिकल्स का वेलोसिटी अगर सेम होगा तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, तो इन दोनों का जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट निकालने के लिए स्टूडेंट्स सिंपल एडिशन करेंगे, ठीक है। एंड इफ the particles have velocity in opposite direction, then in magnitude, तो मैग्नीट्यूड वाइज स्टूडेंट्स ये करें, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मैग्नीट्यूड इट विल बी इक्वल टू say m1 v1 minus m2 v2 divided by m1 plus m2। बात समझ आ गई? हमने मान लिया है कि m1 v1, ये जो प्रोडक्ट है m1 v1, ये m2 v2 के प्रोडक्ट से बड़ा है। जो भी प्रोडक्ट बड़ा हो, डाटा में न्यूमेरिकल्स की बात हो रही है, तो स्टूडेंट्स उसमें से दूसरे वाले को माइनस कर लेना, ठीक है। तो आप ये कैलकुलेशन कॉपी कर लें। ओके, अब ध्यान से देखिए एक और बात, अब मान लेते हैं फ्रेंड्स कोई भी दो पार्टिकल्स हैं और सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन दोनों पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखते हैं उनकी वेलोसिटीज क्या होंगी, कैसी होंगी, किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। If the center of mass is at rest and both the particles
of the system are in motion. अब ध्यान से देखिए, अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है तो वी कैन से दैट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास it will be equals to 0. If the velocity of center of mass is equals to 0, then this m1 v1 vector plus m2 v2 vector divided by m1 plus m2, it will be equals to 0. That is this m1 v1 vector plus m2 v2 vector, it will be equals to 0. It will be equals to 0. That is this m1 v1 vector, it will be equals to negative of m2 v2 vector. Okay. So again, says in magnitude we can say that this m1 v1 is equals to m2 v2. बात समझ आ गई? कैलकुलेशन देख लो यहां. ओके, so m1 divided by m2, it is equals to v2 divided by v1. ओके, क्लियर हो गई बात? अब ध्यान से देखें बेटा, दोनों लीनियर मोमेंटम्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां से पता लगता है कि दोनों वेलोसिटीज ऑपोजिट डायरेक्शन में है. क्लियर? अब ध्यान से सुनिए, मान लेते हैं इफ सपोज से दिस m1 इज ग्रेटर देन m2. अगर बेटा m1 बड़ा है, मतलब फर्स्ट बॉडी का मास ज्यादा है, m1 इज ग्रेटर देन m2, तो सिंस दिस रेशियो m1 by m2 it will be greater than 1, this implies that this v2 divided by v1 is greater than 1. This further implies that this v2 is greater than v1. तो बेटा देखिए, जो हैवियर बॉडी है उसका स्पीड कम है. हैवियर बॉडी है उसका स्पीड कम है, तो लाइटर बॉडी विल मूव फास्ट. क्लियर? एक स्टेटमेंट दे रहा हूं इस केस में, नोट करें आप. फ्रॉम द कैलकुलेशन अबव वी कंक्लूड दैट बोथ द पार्टिकल्स will have the velocities in the opposite directions, and the body, and चलिए the body मत लिखिए, and the speed of the heavier body is small than the speed of the lighter body. The speed of the heavier body is small than the speed of the lighter body. That is, the lighter body will move fast. Okay? तो सिर्फ इसको कॉपी कर लें यहां. यस सर. अब ध्यान से सुनिए, अब बात करते हैं सर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम. Let us suppose say that this vector ACM be the acceleration of center of mass of two particle system. So says acceleration of center of mass, it is written as the rate of change of velocity of center of mass. The rate of change of velocity of center of mass. So the acceleration of center of mass is written as d by dt of m1 v1 vector plus m2 v2 vector divided by m1 plus m2. Clear? अब देखिए d by dt से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. So the acceleration of the center of mass is written as say m1 multiplied by d by dt of vector v1 plus m2 d by dt of vector v2 whole divided by m1 plus m2. Okay? Clear? अब देखिए, rate of change of velocity, it is always equals to acceleration.
So we can say that the acceleration of the center of mass is written as, say, m1 a1 vector plus m2 a2 vector divided by m1 plus m2. So since it will be the expression for the acceleration of the center of mass, it will be the expression for the acceleration of the center of mass. Got it? ये वाली कैलकुलेशन कॉपी करें. Yes, so it's done. अब ध्यान से देखिए. If suppose the acceleration of the center of mass is 0. अगर बेटा acceleration of the center of mass is 0, बेटा सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन 0 होने के बाद भी अगर दो बॉडीज हैं, ये जो टू पार्टिकल सिस्टम है, इसकी जो दोनों बॉडीज हैं, अगर ये एक्सेलरेट करती हैं तो इनके एक्सेलरेशंस का क्या रिलेशन होगा, पहले वो देखिए. If the acceleration of the center of mass is 0, then we can say that this m1 a1 vector plus m2 a2 vector divided by m1 plus m2, it will be equals to 0. That is this m1 a1 vector plus m2 a2 vector, it will be equals to 0. That is this m1 a1 vector, it will be equals to negative of m2 a2 vector. So since from this equation we conclude that both the bodies can accelerate in the opposite direction. अगर बेटा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है तब भी दोनों बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर सकती हैं. तो यहां तक कॉपी करने के बाद मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, आप पहले वो स्टेटमेंट लिखें. फ्रॉम द अबव वी कंक्लूड दैट if the center of mass of the two particle system is 0, the two bodies can accelerate in the opposite directions. The two bodies can accelerate in the opposite directions. Okay? अब ध्यान से देखिए. Now, in magnitude, we can say that this m1 a1 is equals to m2 a2. Okay? That is this m1 divided by m2 is equals to a2 divided by a1. Clear? बात समझ आ गई? Now, if suppose say this m1 is greater than m2, then this ratio m1 by m2, it will be greater than 1. This further implies that this a2 by a1 will be greater than 1. That is this a2 will be greater than a1. अब देखिए बेटा, m1 का वैल्यू m2 से ज्यादा है, तो फर्स्ट बॉडी हेवियर बॉडी है और सेकंड बॉडी लाइटर बॉडी है. एक्सेलरेशन देखिए, a2 is greater than 1a1. a2 is greater than a1. That means कि जो लाइटर पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा है. बात समझ आ गई? तो यहां तक लिखने के बाद में, यहां तक कॉपी करने के बाद में स्टेटमेंट दे रहा हूं, वो लिखें. फ्रॉम द कैलकुलेशन अबव वी कंक्लूड दैट द acceleration of the lighter particle is more than the acceleration of the heavier particle. Okay, sir? आप ये कैलकुलेशन एक बार कॉपी कर लें. Yes, friends, this is all for today. And in the next lecture, I will introduce you with the concept of torque and the concept of angular momentum. बेटा टॉर्क क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करना होता है, लीनियर मोमेंट एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करना होता है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है. ठीक है सर? इनका जो डेरिवेशन है जो आपकी बुक्स में है, आपके स्कूल के टीचर्स ने आपको कराया है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि स्टूडेंट्स टॉर्क कैलकुलेशंस में, न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेट करना कैसे है, तो हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे. ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे.